فوجی ہمارا ہدف ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا کہ صدر ٹرمپ کی قیادت نے تاریخ کا نیا محور تخلیق کیا ہے۔ ایران کا جوہری پروگرام اسرائیل کے وجود کے لیے خطرہ تھا۔ ایران کے جوہری پروگرام سے دنیا کے امن کو خطرہ لاحق تھا۔ یہ محور مشرق وسطیٰ اور اس سے آگے خوشحالی اور امن کے مستقبل کی طرف لے جانے میں مدد دے سکتا ہے۔ میں اور اسرائیلی عوام صدر ٹرمپ کے شکر گزار ہیں۔ ایرانی جوہری تنصیبات پر حملے اسرائیل سے مکمل رابطے کے ساتھ کیے گئے۔ صدر ٹرمپ نے آپریشن مکمل ہونے کے بعد مجھے فون کیا۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ نے کہا کہ ایران پر امریکی حملے کشیدگی میں خطرناک اضافہ ہیں۔ تنازع پر قابو نہ پایا گیا تو خدشہ مزید بڑھ سکتا ہے۔ تنازع سے عام شہریوں، خطے اور دنیا پر تباہ کن اثرات پڑ سکتے ہیں۔ اس خطرناک گھڑی میں افراتفری کی لہر سے بچنا ضروری ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے کہا کہ تنازع کا کوئی فوجی حل موجود نہیں۔ آگے بڑھنے کا واحد راستہ سفارت کاری یا واحد امید امن ہے۔ امریکہ ایران اسرائیل جنگ میں کود پڑا۔ ایران کی 3 ایٹمی تنصیبات ایسی ہیں جن کو نشانہ بنایا گیا، جن میں فردو، نتنز اور اصفہان کی نیوکلیر تنصیبات شامل ہیں۔ امریکی صدر نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ ایران کی جوہری تنصیبات ہم نے ختم کر دی ہیں۔ امن قائم نہ کرنے کی صورت میں مستقبل کے جو حملے ہیں وہ شدید ہوں گے اور ایران کے لیے وہ سانحہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ حملے کے لیے نیتن یاہو کے ساتھ ہم نے ٹیم کے طور پر کام کیا ہے۔ ایران نے ایٹمی تنصیبات پر امریکی حملے کی تصدیق بھی کی اور کہا کہ تینوں ایٹمی تنصیبات پر کوئی بھی تابکاری مواد موجود نہیں تھا۔ اور امریکی صدر نے سوشل میڈیا پر پیغام میں لکھا کہ فردو جوہری سائٹ پر بموں کا مکمل پے لوڈ گرایا گیا ہے۔ اور ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ دنیا میں کوئی اور فوج ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ ہم نے کامیابی سے اپنے اہداف کو نشانہ بنایا ہے اور ایسے میں اپنی فوج کو مبارکباد دیتا ہوں اور اسرائیل کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کیونکہ اسرائیل اب پہلے سے زیادہ محفوظ ہے۔ ایران پر حملے میں B-2 بمبار طیارے استعمال کیے گئے۔ امریکی صدر کا حملے کے بعد نیتن یاہو سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا اور کہا کہ آج ہمیں بہت بڑی کامیابی ملی ہے۔ اسرائیل اب پہلے سے زیادہ محفوظ ہے۔ ایران کو اب فوری طور پر رک جانا چاہیے۔ ایران باز نہ آیا تو دوبارہ حملہ کیا جائے گا اور جو دوبارہ حملہ ہوگا وہ چند منٹوں میں اور شدید حملہ ہوگا جو ایران کے لیے سانحہ ثابت ہو سکتا ہے۔ جبکہ دوسری جانب امریکی حملے سے ایران کو کوئی بڑا دھچکا نہیں لگا۔ ایران کا یہ موقف سامنے آیا اور یہ کہا گیا کہ نشانہ بنائے گئے مقامات پر کوئی بھی تابکاری مواد موجود نہیں تھا۔ تینوں جوہری مقامات میں کوئی ایسا مواد نہیں جو کہ تابکاری کا باعث بنتا۔ ایرانی حکام نے بمباری سے قبل افزودہ یورینیم کو تنصیبات سے ہٹا دیا تھا۔ نشانہ بنائے گئے جوہری تنصیبات کو پہلے ہی خالی کروا لیا گیا تھا۔ ادھر امریکی حملے پر ایران بھرپور جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ ایرانی میڈیا نے کہا کہ خطے میں ہر ایک امریکی شہری یا فوجی اب ایران کا ہدف ہوگا۔ ایرانی سپریم لیڈر کی ٹیلی گراف پوسٹ کو دوبارہ سے شیئر کیا گیا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ امریکہ کو پہنچنے والا نقصان ایران سے کہیں زیادہ ہوگا، جبکہ ہم یمن کے حوثی عہدیدار نے یہ کہا کہ اب یہ جو حملہ کیا ہے یہ جنگ کا اختتام نہیں بلکہ جنگ کا باقاعدہ آغاز ہے۔ امریکہ کا حملہ صرف جوہری مقامات تک محدود ہے۔ امریکہ نے یہ بھی کنفرم کیا اور اس کی یقین دہانی کا مبینہ پیغام ایران تک بھی بھیجا گیا۔ صہیونی میڈیا کے مطابق امریکی پیغام میں کہا گیا کہ وائٹ ہاؤس حکومت کی تبدیلی کا خواہاں نہیں ہے۔ ادھر امریکی حملوں کے بعد اب اسرائیل کی صورتحال یوں ہے کہ وہاں پہ بھی الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ صہیونیوں نے تمام کاروباری مراکز اور تمام سکولز بند کر دیے ہیں۔ تمام اجتماعات پر مکمل طور پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ صرف ضروری کام یا کاروبار کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ موجودہ صورتحال میں جو رابطہ ہوا فرانسیسی صدر کا ایرانی صدر کے ساتھ، اس میں ایرانی صدر نے کہا کہ ایران اپنی جوہری سرگرمیاں نہیں روکے گا اور ہم نے گزشتہ روز بھی دیکھا کہ یہ مذاکرات جاری تھے اور یہ کہا گیا کہ نہ ہی سویلین جوہری پروگرام آگے بڑھانے کے حق سے دستبردار ہوں گے اور نہ ہی ہم اپنی جوہری سرگرمیاں روکیں گے۔ ایٹمی پروگرام جنگ سے چھینا نہیں جا سکتا۔ ایرانی صدر نے واضح طور پر فرانسیسی صدر کو یہ بتا دیا تھا۔ ایران اپنی جوہری سرگرمیوں پر اعتماد کے لیے گارنٹی دینے کو تیار ہے۔ یہ بھی ان کی جانب سے آفر کی گئی تھی۔ ان کی طرف سے اسرائیلی حملوں کا جواب مزید تباہ کن ہوگا، یہ بھی بتا دیا گیا تھا۔ اب انتظار یہ ہے کہ ایران کیا کارروائی کرتا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا جب اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا تو ایران کا رد عمل بھی کچھ تب بھی یوں ہی تھا اور کہا گیا تھا کہ انتظار کریں، اب اسرائیل کو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک کے بعد دیگرے میزائل حملے کیے گئے اسرائیل پر، جس کا اسرائیل کو خاصا نقصان اٹھانا پڑا اور اب صورتحال خطے کی کچھ یوں ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اس جنگ میں باقاعدہ طور پر شامل ہو چکا ہے۔
अमरीका ईरान इसराइल जंग में कूद पड़ा है। ईरान की 3 एटमी तंसीबात पर हमला कर दिया गया। फिर 2 नेतन्ज और इस्फहान में न्यूक्लियर तंसीबात को निशाना बनाया गया है। अमरीकी सदर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ईरान की जौहरी तंसीबात ख़त्म कर दी गई हैं। अमन कायम न करने की सूरत में मुस्तकबिल के हमले शदीद हो सकते हैं। ईरान पर अमन न रहा तो आइंदा हमले मज़ीद सख्त होंगे। हमले के लिए नेतन्याहू के साथ टीम के तौर पर काम किया। अब या तो अमन होगा या फिर ईरान के लिए सानिया होगा। ईरान ने एटमी तंसीबात पर अमरीकी हमले की तस्दीक कर दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर पैगाम लिखा। फिर 2 जौहरी साइट पर बम्बों का मुकम्मल पेलोड गिरा दिया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि दुनिया में कोई और फौज ऐसा नहीं कर सकती थी। सदर ट्रंप ने अमरीकी बमबार तैयारों को अहदाफ पर हमले की मुबारकबाद दी। अमरीकी एहलकार ने कहा कि ईरान पर हमले में B-2 बमबार तैयारे इस्तेमाल किए गए। अमरीकी सदर का हमले के बाद नेतन्याहू को टेलीफोन बोले, आज हमें बहुत बड़ी कामयाबी मिली। इसराइल पहले से ज़्यादा महफूज है। ईरान को फौरी तौर पर रुक जाना चाहिए। ईरान बाज ना आया तो दोबारा हमला किया जाएगा। अमरीकी हमले से ईरान को कोई बड़ा धचका नहीं लगा। निशाना बनाए गए मकामात पर कोई तापकार मवाद मौजूद नहीं था। ईरानी सरकारी मीडिया की जानिब से ऐसा कहा गया, तीनों जौहरी मकामात में कोई ऐसा मवाद नहीं जो तापकारी का बाइस बने। ईरानी हुकाम ने बमबारी से कबल अफसुदा यूरेनियम को तंसीबात से हटा दिया था। निशाना बनाई गई जौहरी तंसीबात को पहले ही खाली करवा दिया गया था। उधर अमरीकी हमले पर ईरान भरपूर जवाब के लिए तैयार। ईरानी मीडिया का कहना है, खिते में हर एक अमरीकी शहरी या फौजी हमारा हदफ है। ईरानी सुप्रीम लीडर की टेलीग्राम पोस्ट दोबारा शेयर कर दी गई। पोस्ट में सुप्रीम लीडर ने कहा कि अमरीका को पहुंचने वाला नुकसान ईरान से कहीं ज़्यादा बड़ा होगा। यमन के हौसी अहदेदार का कहना है कि जौहरी तंसीबात पर हमला जंग का आगाज़ है। यहाँ जौहरी तंसीबात को तबाह करना जंग का खात्मा नहीं बल्कि आगाज़ है। हिट एंड रन का वक्त ख़त्म हो चुका है। अमेरिका का हमला सिर्फ जौहरी मकामात तक महदूद है। अमेरिका ने ईरान को यकीन दहाने का मुबैना पैगाम भेजा है। सिहूनी मीडिया के मुताबिक अमेरिकी पैगाम में कहा गया कि वाइट हाउस हुकूमत की तब्दीली का ख्वाह नहीं है। उधर अमेरिकी हमले के बाद इसराइल में अलर्ट जारी कर दिया गया। सिहूनियों ने तमाम स्कूल बंद कर दिए। तमाम इज्तिमात पर पाबंदी आयद कर दी गई। सिर्फ ज़रूरी कारोबार या काम करने की इजाज़त दी गई है। आपको बता रहे हैं कि अमेरिका ईरान इसराइल जंग में कूद पड़ा है। ईरान की 3 एटमी तंसीबात पर हमला किया गया। फिर 2 नेतन्ज और इस्फहान पर न्यूक्लियर तंसीबात को निशाना बनाया गया। अमरीकी सदर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ईरान की जौहरी तंसीबात ख़त्म कर दी गई हैं। अमन कायम ना करने की सूरत में मुस्तकबिल के हमले शदीद होंगे। ईरान पर अमन ना रहा तो आइंदा हमले मज़ीद सख्त होंगे। हमले के लिए नेतन्याहू के साथ टीम के तौर पर काम किया है। अब या तो अमन होगा या फिर ईरान के लिए सानिया होगा। ईरान ने एटमी तंसीबात पर अमरीकी हमले की तस्दीक कर दी। ईरान ने एटमी तंसीबात पर अमरीकी हमले की तस्दीक की है। अमरीकी सदर ट्रंप का सोशल मीडिया पर पैगाम लिखा कि ऐसा कोई फौज नहीं कर सकती। फिर 2 जौहरी साइट पर बम्बों का मुकम्मल पेलोड गिराया गया है। और सदर ट्रंप ने अमरीकी बमबार तैयारों को अहदाफ पर हमले की मुबारकबाद भी दी है। अमरीकी एहलकार ने कहा कि ईरान पर हमले में B-2 बमबार तैयारे इस्तेमाल किए गए हैं। अमरीकी सदर का हमले के बाद नेतन्याहू को टेलीफोन बोले, आज हमें बहुत बड़ी कामयाबी मिली। इसराइल पहले से ज़्यादा महफूज है। ईरान को फौरी तौर पर रुक जाना चाहिए। ईरान बाज ना आया तो दोबारा हमला भी किया जा सकता है। अमरीकी हमले से ईरान को कोई बड़ा धचका नहीं लगा। निशाना बनाए गए मकामात पर कोई तापकारी मवाद मौजूद नहीं था। ईरानी सरकारी मीडिया की जानिब से बताया जा रहा है कि तीनों जौहरी मकामात में कोई ऐसा मवाद नहीं जो तापकारी का बाइस बने। ईरानी हुकाम ने बमबारी से कबल अफसुदा यूरेनियम को तंसीबात से हटा दिया था। निशाना बनाई गई जौहरी तंसीबात को पहले ही खाली करवा लिया गया था। उधर अमरीकी हमले पर ईरान भरपूर जवाब के लिए तैयार। ईरानी मीडिया का कहना है कि खिते में हर एक अमरीकी शहरी या फौजी हमारा हदफ है। ईरानी सुप्रीम लीडर को टेलीग्राम पोस्ट दोबारा शेयर कर दी गई है। और पोस्ट में सुप्रीम लीडर ने कहा कि अमेरिका को पहुंचने वाला नुकसान ईरान से कहीं ज़्यादा बड़ा होगा। यमन के हौसी अहदेदार की जानिब से भी बताया जा रहा है कि जौहरी तंसीबात पर हमला जंग का आगाज़ नहीं बल्कि जंग का आगाज़ है। यहाँ जौहरी तंसीबात को तबाह करना जंग का खात्मा नहीं बल्कि आगाज़ है। हिट एंड रन का वक्त ख़त्म हो गया है। अमेरिका का हमला सिर्फ जौहरी तंसीबात तक महदूद नहीं है। अमेरिका ने ईरान को यकीन दहाने का मुबैना पैगाम भेजा है। सिहूनी मीडिया के मुताबिक अमेरिकी पैगाम में कहा गया कि वाइट हाउस हुकूमत की तब्दीली का ख्वाह नहीं। उधर
अमरीकी हमले के बाद इसराइल में अलर्ट जारी कर दिया गया। सेहूनियों ने तमाम स्कूल बंद कर दिए, तमाम इज्तिमात पर पाबंदी आयद कर दी गई है। सिर्फ ज़रूरी कारोबारी या काम करने की इजाज़त दी गई है। ईरान अपनी जौहरी सरगर्मियाँ नहीं रोकेगा, ना ही सिविलियन जौहरी प्रोग्राम आगे बढ़ाने के हक से दस्तबरदार होगा। एटमी प्रोग्राम जंग से छीना नहीं जा सकता। ईरानी सदर ने फ्रांसीसी सदर को वाज़ेह बता दिया है। ईरानी अपनी जौहरी सरगर्मियों पर एतमाद के लिए गारंटी देने को तैयार है। उनकी तरफ से इसराइली हमलों का जवाब मज़ीद तबाहकुन होगा। फ्रांसीसी सदर ने राब्ते के दौरान कहा कि ईरानी जौहरी हथियार हासिल नहीं करेगा। ईरान को तमाम ज़मानतें देनी होंगी कि उसका जौहरी प्रोग्राम पुरअमन था। ईरान अपनी जौहरी सरगर्मियाँ नहीं रोकेगा, ना ही सिविलियन जौहरी प्रोग्राम आगे बढ़ाने के हक से दस्तबरदार होगा। और अमरीकी सदर के इस बयान के बाद कि मज़ीद हमले कर सकते हैं, ईरान का रद्द-ए-अमल सामने आया। ईरान की जानिब से कहा गया कि हम अमरीकी शहरी, अमरीकी फ़ौजियों को और अमरीकी अड्डों को हम निशाना बनाएंगे और अमरीकी जो हर फर्द है वो अब हमारे निशाने पे होगा। ईरान की जानिब से ये भी बताया गया कि ईरान के साइंसदान और जो साइंसी माहिरीन हैं वो मुल्क की जौहरी सनत को आगे बढ़ाने का जो अमल शुरू किया था उसको जारी रखेंगे। तो एक बार फिर से ये ऐलान कर दिया गया ईरान की जानिब से कि वो अपना एटमी प्रोग्राम जारी रखेगा। और ईरान की जौहरी तवानाई जो तंजीम है उसने अमेरिका की जानिब से ईरान की 3 जौहरी तनसीबात पर किए गए हमलों की सख्त मज़म्मत की है और इसे वहशियाना हमला करार दिया है। और ये भी कहा गया कि तंजीम ने आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी को भी तनकीद का निशाना बनाया और ये कहा कि वो इस मामले में लापरवाह है और यहाँ तक पहुँचने में माविन साबित हुई है। इसके साथ साथ ईरान की जौहरी तवानाई तंजीम ने आलमी बरादरी से मुतालबा किया कि वो इन हमलों की मज़म्मत करे और ईरान की जायज़ पोजीशन की भी हिमायत करे। ये भी कहा गया कि दुश्मनों के मनफी मंसूबों के बावजूद ईरान के साइंसदान और माहिरीन मुल्क की जौहरी सनत को आगे बढ़ाएंगे और हम इस अमल को जारी रखेंगे। ये भी कहा कि इस हमले के बाद ईरान अब ज़रूरी इक़दाम करेगा जिनमें कानूनी कार्रवाइयाँ भी शामिल होंगी। जबकि दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का भी रद्द-ए-अमल सामने आया। उन्होंने मज़ीद ख़दशात का इज़हार किया कि ख़ित्ते के लिए जो हालात हैं वो मज़ीद मुश्किल होंगे, तो ऐसे में अफरा तफरी में ना फंसा जाए, इससे बाहर निकला जाए और अमन का जो वाहिद रास्ता है वो सिर्फ़ सिफारतकारी के ज़रिए ही मुमकिन है। और इन हमलों को ख़तरनाक शिद्दत करार दिया है एंटोनियो गुतेरेस ने। उन्होंने ये भी कहा कि इस तनाज़े के शिद्दत इख्तियार करने से ख़तरात में मज़ीद इजाफ़ा होगा जो कि पूरी दुनिया के लिए और इस खित्ते के लिए मज़ीद संगीनी का बाइस बनेगा। एक्स पर अपने पैगाम उनकी जानिब से कहा गया कि ये इस बात का बढ़ता हुआ ख़तरा मौजूद है कि तनाज़ा तेज़ी से अब काबू से बाहर हो जाएगा, जिसके नतीजे में हालात मज़ीद ख़राब होंगे और जब हालात ख़राब होंगे तो शहरियों, खित्ते और दुनिया के लिए तबाहकुन नताइज बरामद हो सकते हैं। ये भी कहा कि नाजुक मरहला है और इंतहाई ज़रूरी है कि अफरा तफरी से बाहर निकला जाए और इस तनाज़े के कोई भी फ़ौजी हल मौजूद नहीं था और आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता सिफारतकारी है, इसके ज़रिए ही अमन कायम हो सकता है। ये इंतबाह जारी किया गया है और ये बयान सामने आया है अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का। जबकि दूसरी जानिब सूरत हाल कुछ यूँ है कि अमेरिका ने हमला करने के बाद ईरान को धमकी भी दी है और ये कहा है कि अब अमन कायम ना हुआ तो हम मज़ीद हमले करेंगे और मज़ीद जो करेंगे वो शदीद होंगे और एक्यूरेट होंगे। ये भी कहा गया ट्रंप की जानिब से। और ट्रंप ने ये भी आज बताया आवाम से खिताब में कि हमने ईरान की जो 3 जौहरी तनसीबात हैं जिनमें फर्दू, नेतन्ज और इस्फहान की जौहरी तनसीबात शामिल हैं